नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। बांग्लादेश की सरकार अपने ही जाल में फंसती नजर आ रही है। अपने देश में जारी हिंसा के लिए दूसरों पर सवाल उठाने वाली सरकार की झूठ की पोल खुल गई है। बांग्लादेश की पोल उस्मान हादी हत्याकांड के आरोपी ने खोल दी है। उस्मान हादी के कथित हत्यारे ने बांग्लादेश के उस दावे की भी धज्जियां उड़ा दी जिसका आरोप उसने भारत पर लगाया था। तो चलिए विस्तार से जानते हैं आखिर क्या है मामला जिसके कारण अपने ही मकड़ जाल में उलझ गया है बांग्लादेश। दरअसल बांग्लादेश के बहुचर्चित उस्मान हादी हत्याकांड में नया मोड़ सामने आया है। इस मामले के मुख्य आरोपियों में शामिल फैसल करीम मसूद ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में उसने साफ किया है कि वह भारत नहीं बल्कि दुबई में मौजूद है। इस वीडियो में उसने खुद को निर्दोष बताया है। उसने हत्या में किसी भी तरह की संलिप्तता से साफ इंकार कर दिया है। कथित हत्यारे ने वीडियो जारी कर कहा है कि उस पर और उसके परिवार पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, আমি ফয়সাল করিম মাসুদ। আপনারা যে হাদি হত্যাকাণ্ডের সাথে আমার জড়িত থাকার কথা জানেন। আসলে প্রকৃতপক্ষে আমি হাদি হত্যার এই ঘটনার সাথে কোনোভাবেই জড়িত না। এটা একটা মিথ্যা বানোয়াট, একটা চক্রান্ত, যার কারণে আমি দেশ ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছি। আমি দেশ ছেড়ে চলে এসেছি এখন দুবাইতে আছি। আমার দুবাইয়ের 5 বছরের মাল্টিপল ভিসা ছিল। যেভাবে হোক অনেক কষ্ট করে দুবাই চলে এসেছি। আর আপনারা এই হাদি হত্যাকাণ্ডের জন্য মিথ্যাভাবে আমার ফ্যামিলির সবাইকে জড়াইছেন। তাদের কোনো দোষ নেই, তাদেরকে আপনারা সবাই মিথ্যা হয়রানি করছেন। যেভাবে পারছেন সেভাবে অত্যাচার করছেন। আসলে এটা বলে বোঝানোর মতো না। আপনারা অনেক অত্যাচার করছেন, মিথ্যাভাবে তাদেরকে ফাঁসিয়েছেন, আমাকে ফাঁসিয়েছেন। হ্যাঁ, হাদির সাথে আমার সম্পর্ক ছিল। আমি গিয়েছিলাম তার অফিসে যাওয়ার পিছনে কারণটা হচ্ছে, আমি যেহেতু ব্যবসা করি, আমার একটা আইটি ফার্ম আছে। তো দীর্ঘ 10 বছর ধরে আমি বিজনেস করছি। এই আইটি ফার্মে অনেক কাজই হয়, সব সরকারি কাজ হয়। তো এখানে একটা কাজ ছিল অর্থ মন্ত্রণালয়, একটা কাজ ছিল আপনার খাদ্য মন্ত্রণালয়। তো এই দুইটা কাজ নিয়ে আমি কথা বলতে গিয়েছিলাম। সে আমাকে পাইয়ে দিবে আশ্বস্ত করেছিল। আমি তাকে 5 লাখ টাকাও দিয়েছি, অগ্রিম চেয়েছিল। এবং তার এই যে আপনার যে প্রোগ্রামগুলো, এগুলার ডোনার হিসেবে আমাকে থাকতে বলেছিল। আমি থেকেছি এবং তার প্রোগ্রামগুলোর জন্য যত টাকা লাগতো আমি দিয়েছি। এবং লাস্ট যেদিন শুক্রবার, ওই দিনে তাকে আমি 10,000 টাকা দিয়েছি তার ওই প্রোগ্রামের জন্য। এখন কথা হচ্ছে, আমাকে মিথ্যাভাবে ফাঁসানো হয়েছে। এগুলা যেহেতু হাদির সাথে জামাতের একটা কানেকশন আগে থেকেই ছিল, ও জামাতের প্রোডাক্ট। তো সেই জন্য জামাতিরা কোনোভাবে এই ঘটনা ঘটেছে। ওই বাইকের মধ্যে আমি ছিলাম না এবং ওই বাইকের চালকও আমার কোনো ছোট ভাই ছিল না। আমাদের দুজনকে মিথ্যাভাবে ফাঁসিয়েছে। এখন কি বলবো, এই জন্য আমার পরিবার ভুক্তভোগী। আমার পরিবারকে আপনারা মিথ্যাভাবে এত জঘন্যভাবে যে অত্যাচারগুলো করছেন, এটা আসলে কাম্য না। আমি এটার প্রতিবাদ জানাই, তীব্র প্রতিবাদ জানাই। এটার একদিন সুষ্ঠু বিচার হবে। এই ঘটনার সাথে আমার পরিবার, আমি কোনোভাবেই জড়িত না। আর আপনারা যেই ব্যাংকের টাকার কথা বলছেন, এগুলো আমার কামানো টাকা, আমার সরকারি বিলের টাকা। আমি এবছরও 9 লাখ টাকা ট্যাক্স পে করেছি। প্রতি বছরই আমি গভর্নমেন্টকে ট্যাক্স দেই। এগুলো প্রত্যেকটা হিসাব আছে।
वीडियो में फैसल करीम मसूद ने दावा किया है कि उसने उस्मान हादी की हत्या नहीं की और ना ही इस वारदात से उसका कोई संबंध है। वीडियो के मुताबिक वह अपनी जान की सुरक्षा के चलते दुबई चला गया था। फैसल ने दावा किया कि हत्या के पीछे अन्य राजनीतिक कारण हो सकते हैं। फैसल की ओर से जारी वीडियो में कहा गया है कि उस्मान हादी का संबंध जमात से था और संभव है कि उसी संगठन से जुड़े लोगों ने यह हमला किया हो। उसने बताया कि इस घटना में उसका नाम गलत तरीके से घसीटा जा रहा है। आरोपी का कहना है कि उस्मान हादी के साथ उसका संपर्क केवल कारोबारी जरूरतों तक सीमित था। फैसल एक आईटी कंपनी का मालिक है और उसने स्वीकार किया कि उसने राजनीतिक चंदा दिया था, लेकिन यह पूरी तरह वैध और पेशेवर कानूनों से था, ना कि किसी आपराधिक साजिश के तहत। बता दें कि इससे पहले ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस की ओर से दावा किया गया था कि फैसल करीम मसूद बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या कर भारत भाग गया है। पुलिस के अनुसार वह हलुआ घाट बॉर्डर के जरिए भारत में दाखिल हुआ था। बांग्लादेश की ओर से इस आरोप का जवाब देते हुए मेघालय में तैनात बीएसएफ के आईजी ने इस दावे को खारिज कर दिया था। आईजी ने कहा था कि उस्मान हादी के हत्यारे की सीमा पार करने का कोई सबूत नहीं मिला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जानकारी और कागजात मिले हैं, उसके अनुसार ये पुष्टि हुई है कि फैसल करीम मसूद इस समय दुबई में है। सूत्रों की माने तो उसके पास दिसंबर 2022 में जारी 5 साल का मल्टी एंट्री यूए वीजा है। इस वीजा को हासिल करने के लिए उसने स्वयं भुगतान किया था। जानकारी के लिए बता दें कि उस्मान हादी को 12 दिसंबर को ढाका में चुनाव प्रचार के दौरान गोली मार दी गई थी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया। यहां 18 दिसंबर को उनकी मौत हो गई थी। हादी इंकलाब मंच के प्रवक्ता थे और हालिया जन आंदोलन के बाद एक प्रभावशाली युवा नेता के रूप में उभरे थे। वे आगामी संसदीय चुनाव में उम्मीदवार भी थे। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें जरूर बताइएगा।